So, Good morning. Good morning, sir. in the last lecture, we have seen practical number 2. Okay, so practical 2 is about factorial polynomial and problems of finding missing terms from the difference table. Today we will see practical number 3. So name of the practical or title of the practical is Newton's forward and backward interpolation formula. So let me share your screen. So this is the practical 3. Title of the practical is Newton's forward and backward interpolation formula. This is a so the first question comes in our mind, what is interpolation? So actually interpolation problem is to compute value of function f at x. Suppose you have given tabulated function. Okay, so let us consider function y equal to fx. So I have not given y in terms of x. I mean थोड़ी ही वैल्यूज दी हुई है फंक्शन की, कुछ ही वैल्यूज दी हुई है, पूरा फंक्शन नहीं दिया है. लेट अस कंसिडर function y equal to fx defined on closed interval ab. Let y0 equal to fx0. So value of function at x0 is y0. Now let me take y1 is equal to fx1. That is value of function at x1 is y1. Let me take y2 equal to fx2 and so on. Okay, so yn equal to f of xn minus 1. तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये फंक्शन है, ये पॉइंट्स के आगे हमें वैल्यू दी गई हुई है, ठीक है, एंड सच दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड n, x1 and x0. So if I take difference between any two consecutive xi, then it remains constant. Let me say this to be h. Similarly, x2 minus x1 equal to h. So this is equally spaced data. You can say x, then x3 minus x2 and so on, xn minus xn minus 1. Okay, so all the time this is constant and that constant is h. So here h is equal to xn minus 1 for every n. Okay, etc. So now look at this. What is x1? If you bring x0 on right side, you will get x1 equal to x0 plus h. Now bring x1 on right side so that you will get x2, and x2 is nothing but x1 plus h. Now see, look at x1. Already our x1 is x0 plus h, so let me substitute this value.
So replacing x1 by x0 plus h and this h. So this is nothing but x0 plus 2h. Therefore x2 is equal to x0 plus 2h. Now similarly, can you say that x3 equal to x0 plus 3h? Yes. Similarly, what is x3? x3 is nothing but x2 plus h. And x2 is nothing but x0 plus 2h. So this is x0 plus 2h plus h. So that you will get x0 plus 3h. So x3 is nothing but x0 plus 3h. So now I am asking you a question. In general, what is value of xn in terms of x0? Can anybody give the answer? x0 plus n3h nh X0 plus nh. nh. Okay. Xn is equal to x0 plus nh. Okay. So these xi's are known as argument. Okay. And this is equally spaced data. Xi's x1, x2, x3 are known as argument of function y equal to fx. So in the last lecture we have prepared difference table. Okay, so let me again prepare a difference table. This is a very important table. Okay, so suppose this is x, this is y, this is delta y, this is delta square y, this is delta cube y, delta 4y, delta 5y, and delta 6y. So corresponding to x0, the value is given y0. Corresponding to x1, value is given, value is y1. Corresponding to x2, value is y2. x3, y3. x4, value is y4. x5, value is y5. x6, value is y6. So now y1 minus y0 here. What should I write here? In the last lecture we have prepared such type of table. We have defined y1 minus y0 equal to delta y0. Do you remember? In the last lecture we have defined in this way. Here what is the entry? यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी? डेल्टा y1, y2 minus y1. Here delta y2, here delta y3, delta y4, delta y5. यहाँ पे delta square y0, delta square y1, this is delta square y2, this is delta square y3, and the last is delta square y4. यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी? Please give me the answer. Delta 3 y0. delta 2 y1 minus delta 2 y0, that is delta 3 y0. This is nothing but delta 2 y1. This is delta 2 y2. Yes, and this is delta 2 y3. So here again delta 4 y1, delta 4 y2, here delta 5 y0, delta 5 y1, and this is delta 6 y0. So this is the difference table. So now there are two interpolation formula which we are defining. So let me first write down Newton's forward interpolation formula.
तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का मतलब पहले समझते हैं। इंटरपोलेशन मीन्स क्या, देखिए यहाँ पे मुझे x0 के आगे वैल्यू पता है, कौन सी है, y0, x1 के आगे y1 है, x2 के आगे y2 है, x3 के आगे y3 है और x6 के आगे y6 है। मुझे ये स्पेसिफाइड फंक्शन ऐसे कुछ दिया नहीं हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स मीन्स ऐसे कुछ नहीं दिया है, x² + 3 और ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस, मुझे नहीं पता है ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे कितनी वैल्यू पता है कि इन पॉइंट्स के आगे फंक्शन की वैल्यू पता है कि भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऐसा, समझ में आ रहा है। तो अगेन द by using this many values can I find out value between x0 and x1 or x1 and x2 or x3 and x4 or x4 and x5 or x5 and x6। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम बता सकते हैं कि भाई ऐसी कुछ होनी चाहिए। देखिए x0 के आगे सपोज 0 है, x1 के आगे 1 है, x2 के आगे 2 है, 3 के आगे 3 है, 4 के आगे 4 है, 5 के आगे 5 है, 6 के आगे 6 है। तो बाय मेकिंग यूज ऑफ interpolation formula you can give the answer of y when x is between x0 and x1 or x1 and x2 or x3 and x4 and so on। तो ये प्रोसेस है वैल्यू ऑफ y फाइंड करने की x के आगे, ये इसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। समझ में आया इंटरपोलेशन का मतलब, ये पॉइंट्स के आगे हमें फंक्शन की वैल्यू पता है, लेकिन अगर मैं ये पॉइंट के बीच वाले पॉइंट में कहीं पे वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे पता चलेगी। तो ये जो प्रोसेस है वैल्यू फाइंड करने की, इसे हम इंटरपोलेशन बोलेंगे। तो ये दो टाइप के इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, फॉर इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वी स्पेस्ड डेटा एंड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वी स्पेस्ड डेटा। तो इक्वी स्पेस्ड, इसको हम समझे तो इक्वी मीन्स इक्वल और स्पेस्ड मीन्स स्पेस मीन्स इक्वी स्पेस्ड मीन्स कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive argument or difference between any two xi remains constant all the times। Here now, from the very beginning, we have assumed that x1 minus x0 is equal to, what is this difference? We have assumed that this difference is h. Similarly, x2 minus x1 is h, x3 minus x2 is h, and so on. So all the times this difference is constant, and that constant difference is just h. So this is a interpolation formula for equispaced data, you can say। Okay, ये हम क्या, because difference any two consecutive xi is constant all the times। मुझे ये नहीं पता है कि डिफरेंस बिटवीन वाई आईज आर कांस्टेंट ऑल द टाइम, ये वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू एक्स आई रिमेन्स कांस्टेंट देन यू कैन से दैट स्पेस्ड इंटरपोलेशन फॉर्म और इक्वी स्पेस्ड डेटा रादर देन। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है जो हम फाइंड करना सीखने वाले हैं आज, वो है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो पहले मैं उसका फॉर्मूला लिखवाता हूँ आपको, बाद में हम सो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये है suppose we want to find out y equal to fx for some x। अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है x के आगे, तो ये फॉर और ये डेटा ऐसे मुझे दिया हुआ है। Suppose we want to find out
y equal to fx for some x, and let us assume that x0 less than x less than x1, xi not 1 but it is between any of xi, and let us assume that h equal to x1 minus x0 equal to x2 minus x data. So now in this case we take mu. How we consider parameter mu? mu हम कैसे लेंगे? यहाँ पे जो x के आगे पॉइंट x के आगे जो वैल्यू फाइंड करनी है, मैं यहाँ पे x लिखूंगा, x माइनस में जो इनिशियल वैल्यू है उसकी नज़दीक वाली ये मैं लूँगा x माइनस x0 अपॉन h, क्योंकि h फिक्स है, x0 फिक्स है, ये दोनों फिक्स हो गए। x आप दिया हुआ है पॉइंट, उसके आगे आपको वैल्यू निकालने है, सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज म्यू। देन वैल्यू ऑफ f एट x इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, y0 प्लस म्यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल्टा y0 प्लस म्यू इंटू म्यू माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y0, बाद में म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 3 डेल्टा क्यूब y0 एंड सो ऑन। ये आगे चलता रहेगा, और इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं आप, दिस इज नथिंग बट म्यू c1 डेल्टा y0 म्यू c2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस म्यू c3 डेल्टा क्यूब y0 एंड सो ऑन, वेयर mu cr is given by mu factorial into mu minus r factorial। NCR का फॉर्मूला आपको पता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं कि अगर तुम्हें म्यू ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप कितने डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन चूज दिस मैनी डिफरेंट वेज। ओके, म्यू फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू म्यू माइनस r फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं बैकवर्ड, तो ये पहला प्रश्न ये उठता है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला के अंदर हमें कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। y0 चाहिए, म्यू तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, बाद में डेल्टा y0 चाहिए, डेल्टा स्क्वायर y0, तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ये वैल्यू हम कहाँ से लें। तो दिस वैल्यूज कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस टेबल। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा y0 कहाँ पे है, यहाँ पे डेल्टा y0 यहाँ पे देखिए वैल्यू किस हिसाब से आ रही है, पहले आ रही है y0, बाद में डेल्टा y0, बाद में डेल्टा स्क्वायर y0, बाद में डेल्टा क्यूब y0, देन डेल्टा 4y0। तो ये आप पैटर्न देख सकते हैं कि भाई डेल्टा y0 यहाँ पे है, डेल्टा y0 यहाँ पे, डेल्टा स्क्वायर y0 यहाँ पे डेल्टा क्यूब y0, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा 4y0 है, ये सारी वैल्यू इस हिसाब से है, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू कंसिडर करनी होगी, ये तो ये मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको बोलता हूँ, उसे इसे बोलते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला की एंट्री है, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये वैल्यूज आपको कंसिडर करनी है, y0 डेल्टा y0। समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रहा है? बाद में हम लिखते हैं न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है न्यूटन्स बैकवर्ड। ये जो पहली और दूसरी चीज़ एक मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कन्वीनियंट किस टाइप के डेटा के लिए है। अगर आपको फंक्शन की वैल्यू वो x के आगे फाइंड करनी है और x है वो
it is close or it is near to x0 और x1 और x2, I mean वो टेबल के बिगनिंग पार्ट में है अगर x वैल्यूज, तो न्यूटन फॉर इंटरपोलेशन फॉर्मूला सुटेबल रहेगा फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने में, क्योंकि दिस विल गिव्स अस वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। अगर एंड पोर्शन टेबल का एंड पार्ट है, यहाँ पे है कोई, यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, दैट विल गिव यू अ गुड अप्रोक्सीमेशन। तो ये एक बात समझ में लीजिए कि भाई न्यूटन्स फॉर इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज कन्वीनियंट व्हेन x इज इन द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये देखते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मुझे स्टडी करना चाहिए पहले, तो मैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन करके बताऊं। इसे बोलते हैं नेबला, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ये वाला ऑपरेटर ये तो हमने डिफाइन कर दिया था, अब हम नेबला डिफाइन करते हैं। नेबला y1 की डेफिनेशन क्या है, तो कि ये है y1 माइनस y0, और ये क्या होगा डेल्टा y0। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नेबला एंड डेल्टा। नेबला y2 कौन सा क्या होगा, कैन एनीबॉडी गिव, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट y1 फ्रॉम y2। नेबला y3 की वैल्यू क्या होगी, y3 माइनस y2 एंड सो ऑन। तो ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। नेबुला इज नोन एज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और डेल्टा है, डेल्टा इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये हम फाइंड करते हैं, देखिए डेल्टा नेबुला टू y0 क्या होगा देखते हैं। ये देखिए नेबुला y0, नेबुला टू y2 नॉट y0 सॉरी, नेबुला टू y2, यहाँ पे नेबुला y1 बाद में हम नेबुला y2 फाइंड करेंगे, देखते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, y2 माइनस नेबुला y1। ओके, अभी फिर से हम अप्लाई करते हैं, व्हाट इज नेबुला y2, y2 माइनस y1 माइनस दिस इज y1 माइनस y0। तो ये देखिए ये क्या है, y2 माइनस 2y1 माइनस माइनस प्लस y0। तो ये मुझे कौन सी वैल्यू पता चली, नेबुला टू y2 इज इक्वल टू y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अभी देखिए डेल्टा टू y0 की वैल्यू हम निकालते हैं, डेल्टा टू y0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। अभी डेल्टा y1 क्या है, y2 माइनस y1, ये क्या होगी y1 माइनस y0। तो ये देखिए y2 माइनस 2y1 इट्स माइनस एंड माइनस प्लस y0। तो ये एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि नेबुला टू y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, कोई बता सकेगा मुझे, नेबुला टू y2 इज इक्वल टू, इट इज सेम एज डेल्टा टू y0।
सिमिलरली आप डेल्टा नेबला 3y3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसे कैलकुलेट करके देखिए क्या आ रही है। ठीक है, तो ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अभी हम देखते हैं न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। is given by so suppose we want to find out y equal to fx for some x। ओके, ये मुझे वैल्यू निकालनी है। and let us assume that x is end of the table, xn minus 1 less than x less than xn, and also let us assume that h equal to x1 minus x0 equal to x2 minus x1 and so on. So now put mu equal to, now we put mu equal to x minus xn by h, x minus xn by h, not x0. We will call this parameter to be mu. यहाँ पे मैंने कौन सी ली थी वैल्यू, आई शुड टेक x1 not xi, here I should take x1 since x, यहाँ पे x1 लेना होगा। beginning x is, in short I want to say that x is in the beginning of the table। तो देखिए न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है, fx इज इक्वल टू, पहले आएगा yn प्लस म्यू नेबला yn माइनस 1 प्लस म्यू इंटू म्यू प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर yn माइनस 2 n माइनस 1 then n माइनस 2 म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबला 3yn माइनस 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी मुझे, yn नेबला yn माइनस एट्सेट्रा। तो ये देखिए डिफरेंस टेबल है, yn मीन्स y6, यहाँ पे देखिए, बाद में नेबला कौन सी आएगी, नेबला y5। ओके, नेबला y5 इज इक्वल टू डेल्टा, ये वाली एंट्री है डेल्टा y5। सो नेबला y5 एक्चुअली क्या होगी, देखिए ये टेबल में देखिए, मुझे नेबला y5 निकालनी है सपोज, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगी ये बता सकते हैं। बताइए प्लीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेबला y5। y5 minus y0, y5 माइनस y4, ठीक है, यही होगी ना। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट what is nebula y5, nebula y6 and so on। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल दिया है, तो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो मुझे कौन सी कंसिडर करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आपको लेनी चाहिए।
ये वाली y6 delta y5 delta 2 y4 delta 2 y3. So this is useful for Newton backward interpolation formula. So you should begin from y6. Okay. Now let me take one example. From the given data, find f1.5 and f7.5. So this is the data we have given. X and fx. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. At 1 value is 1, at 2 this is 8, at 3 27, this is 64, this is 125, this is 216, this is 343 and this is 512. Now I want to find out value of function at 1.5 and 7.5. Now you can see 1.5 lies between 1 and 2, so it is in the beginning of the table, ये शुरुआत के पोर्शन में है. तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? कैन एनीबॉडी गिव द आंसर? फॉरवर्ड अप्लाई करना चाहिए या बैकवर्ड? न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और इसके लिए न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर applying Newton's forward interpolation or backward interpolation, you need these values. Okay, these values and these values. ये निकालने के लिए आपको पहले डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा. So first let us prepare a difference table. So this is x and this is y. This is delta y. This is delta 2y. This is delta 3y, delta 4y and so on. जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे. Five, 6, 7 and 8. So value is 1, then 8, this is 216, this is 343 and this is 512. So now what is the first difference? 8 minus 1, 7. 7, यहाँ पे 19, 19. Then 37, very good. Then 61. Then 91. 127. And then 169. Correct me if I am wrong. Okay? Here 12, 18, then 24, then 30, 36 and 42. This is 6, 6, 6. You are lucky. यहाँ पे देखिए सारे एंट्री 0 होगी. ठीक है. So this is our difference table. Now I want to find out f1 1.5. So f1.5 equal to question mark. Okay. So note that 1 less than 1.5 less than 2. That means that it is between 1 and 2, and 7.5 is between 7 and 8. So in order to find out f1.5,
it is convenient to apply Newton's forward interpolation formula. So let me say this to be x. Take x is equal to 1.5. Now what is h? How can you find out h? H is nothing but x1 minus x0 is equal to x2 minus x1. Therefore, what is h? 2 minus 1. See, this is x0, this is x1, this is x2 and so on. So 2 minus 1, that is 1. So your h is 1. Now what is mu? What should I take mu? According to the Newton's forward interpolation formula, mu is equal to x minus x0 upon h. Now what is x? X, that is 1.5 minus x0. x0 is 1. So this is, we say this to be x0. This initial entry is x0. This is x1. जो पॉइंट के आगे हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, हम हमेशा उसको x बोलेंगे इंटरपोलेशन फॉर्मूला में, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 1.5 के आगे फाइंड करनी है तो वी से 1.5 टू बी x, ओके। So 1.5 minus 1 by h is 1. So what is the answer? 0.5 upon 1. That do you understand? तो ये मुझे क्या मिल गया? म्यू की वैल्यू मिल गई। Now by Newton's forward interpolation formula, क्या मिलेगा? फॉर्मूला क्या है भाई, बता सकते हैं कोई? f of x is equal to y0 plus mu delta y0 plus mu into mu minus 1 by 2 factorial delta square y0 3 factorial delta cube y0 and so on. So now let me plug in all the values. What is y0 by the way? देखिए ये मुझे कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी होगी इन ऑर्डर टू अप्लाई न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला? आई शुड कंसिडर दिस वैल्यू. So this is your y0, this is your delta y0 for Newton's forward interpolation formulas. तो आपको ये जांच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं y0 की वैल्यू कितनी है? 1 है बाद में ये, सो यू शुड राइट हियर 1. म्यू कितना है? 0.5. डेल्टा y0 की वैल्यू कितनी है? टेबल में दी हुई है 7 है। देखिए यहाँ पे, यहाँ 7, 12, 6 एंड 0, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना लिखना है आपको? 12, 7, बाद में 12, बाद में 6 और बाद में 0 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? म्यू इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 बाई 2 इंटू, यहाँ पे आप 0.5, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मीन्स, सो 6 गेट्स कैंसर। बाद में ये देखिए डेल्टा 4y0 तो 0 है, इसलिए यहाँ पे सारी एंट्री क्या आ जाएगी? तो ये सिंप्लीफाई कीजिए कैलकुलेटर की मदद से, यू विल गेट 1 प्लस 3.5 माइनस 1.5। ये गलत है इसमें कैलकुलेशन, तो आप प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। मेरे पास जो है उसमें ये है। सो fx इज इक्वल टू 3.375। f ऑफ 1.5 की वैल्यू कितनी है? 3 पॉइंट। यहाँ पे एक देखिए, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है ना, ये क्यूबिक है। देखिए 1 का क्यूब कितना आता है? 1, 2 का 8। ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रही है। 3 का 27, तो 1.5 का आंसर, एग्जैक्ट आंसर कितना होना चाहिए? कैन एनीबडी कैलकुलेट? जस्ट टेक क्यूब ऑफ 1.5, कितना आ रहा है? इतना आ रहा है प्रिसाइज, थोड़ा डिफर भी हो सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट है ना, सेम आ रहा है। देखिए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला है वो रीजनेबली अच्छा है, क्योंकि ये आंसर हमें देता है, जो प्रिसाइज वैल्यू पता है उतना ही आ जाता है। हर बार इतना
प्रिसाइज आई इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x गोज टू x क्यूब है पोलिनोमियल, ये फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन है। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी पोलिनोमियल होगी, फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन होगा ना, तो इंटरपोलेशन फॉर्मूला है ना, न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो आपको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू ही देंगे। लेकिन अगर पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो वो दैट विल गिव यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू से वो थोड़ी डिफर होगी, एरर रहेगी, लेकिन रीजनेबली वो अच्छी वैल्यू आपको पता चलेगी, ठीक है। लेकिन कब है जब टेबल के इनिशियल पोर्शन में वैल्यू निकालनी है, और बैकवर्ड कब है तो कि टेबल के एंड पोर्शन में। तो अभी देखिए ये तो आंसर हो गया न्यूटन्स फॉरवर्ड का। और यू कैन से दैट f1.5 is equal to 3.375, ठीक है। नाउ we'll go for f7.5. now for f7.5, so now let me take here, ये पॉइंट को मुझे हम क्या बोलेंगे x, so let me take x is equal to 7.5, ठीक है। h तो हमें पता है कितना है, यहाँ पे 1 है, तो म्यू हम क्या लेंगे, x माइनस एक्सएन बाई एच। देखिए फॉर्मूला में हमें म्यू क्या लेना है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में म्यू इक्वल टू x माइनस एक्सएन बाई एच, ठीक है। सो बाय न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, fx is equal to yn प्लस म्यू इंटू नेबला yn माइनस 1, ठीक है, प्लस म्यू इंटू म्यू प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर yn माइनस 2 एंड सो ऑन। नाउ लेट मी पुट ऑल द वैल्यूज। तो हमें देखिए yn मीन्स जो लास्ट वाली एंट्री है वो लिखनी है, यहाँ पे yn कितना है 512, सो आई शुड राइट हियर 512। म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी मैंने निकाली नहीं है, x कितना है 7.5, xn मीन्स कितना है 7, 8 है। देखिए लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है, 8 है ना, दिस इज xn, दिस इज xn माइनस 1, सो दिस इज 8, ठीक है। सो ये 7.5 माइनस 8/1 माइनस 0.5, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 0.5। अभी ये देखिए नेबला yn माइनस 1, ये एंट्री कैसे हम लिखेंगे, तो ये एंट्री मुझे ऐसे पता चलेगी, ठीक है। तो ये है तब आपका नेबला yn माइनस 1, सॉरी ये yn है, योर yn, दिस इज योर नेबला yn माइनस 1 एंड सो। तो पहले मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा, 512 से, ठीक है, बाद में माइनस 0.5। अगली वाली एंट्री कौन सी है, नेबला yn माइनस 1, 169, 42 एंड 6, तो यहाँ पे आपको लिखना है 169। देखिए ये क्या होगा माइनस 0.5 और माइनस 0.5 प्लस 1 बाई 2, बाद में वाली एंट्री 42 थी, ठीक है। बाद में आपको यहाँ पे माइनस 0.5, दिस इज माइनस 0.5 प्लस 1 माइनस 0.5 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और बाद में थी 6, ठीक है। और बाद में तो सारी एंट्री 0 हो गई है, देखिए यहाँ पे 42, 6 एंड देन 0। तो ये हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज 512, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। सो 84.5 माइनस 5.25, ठीक है, माइनस 0.375। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा, ये आंसर आपका आएगा 521.875,
तो ये एफ ऑफ कितना है 7.5। आप देखिए एग्जैक्ट आ रही है कि थोड़ा कुछ डिफर है। क्यूब कीजिए इसका तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है आंसर। एग्जैक्टली उतना ही है। डिफरेंट है थोड़ा। एग्जैक्टली। ओके, तो ये था न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई फॉरवर्ड अप्लाई कब करना है और बैकवर्ड अप्लाई कब करना है। बाद वाला एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2। तो ये रहा एग्जांपल 2 आपका। From given tabulated values, find f 1.6. टेबल दी हुई है जैसे this is x and this is fx 1.0, then 1.5, this is 2.0, 2.5 and 3.0. So this is 0.11246, then 0.140, 32, 0.168, 00, 0.195, 47, 0.22270। तो ये देखिए 1.6 मीन्स यहाँ पे क्या है, तो ये नज़दीक यहाँ से होगा इनिशियल पोर्शन से कि एंड पोर्शन से, यहाँ से नज़दीक होगा ना। 1.6 is near to 1.5, it is not near to 0, okay, or 1.0. 1.6 is close to 1.0 as compared to 3.0, ठीक है। So we will apply Newton's forward interpolation formula for finding value f 1.6। तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। आप दो तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं। So this is x, this is y, then delta y, so x is 1.0, then 1.5, 2.0, then 2.5 and 3.0. So corresponding to 1.0 value is given in the table 0.11246. This is 0.14032. Corresponding to 2.0, it is given that 168.168, then 0.19547, then value is given 0.22270. Okay, now delta y. So what is the first difference? You need to subtract this entry from this. तो ये आएगी आपकी 0.02786। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए प्लीज। 2768 बाद में ये वैल्यू आएगी 0.0
0.2747. 0.02723. ये डेल्टा 2y माइनस माइनस 0.00021. This is 24. ये minus 0.123, and again I should write 10. And what is delta 4y? 0. So this is difference table. ये समझ में आ रहा है कैसे आपको फाइंड करना है? ये इसमें से ये एंट्री निकालेंगे तो ये मिलेंगे, ये ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लेट मी टेक x इक्वल सर यस प्लीज 0.0002. यहाँ पे हाँ सर इसमें से 0.0276. हाँ 6-8 नहीं है यहाँ पे, कौन 0.027. so if you subtract this वो बोल from रहा है 1 0 ज्यादा लिख दिया है। okay sorry, my mistake, so I should write just 10. thank you. ठीक है, तो for f1.6 f1.6 मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट ये देखिए 1.6 है वो 1.5 से नज़दीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे x0 ले लेते हैं, ठीक है, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम ये x लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1.5, ठीक है। दोनों, क्योंकि जब बुक आपकी रेफरेंस बुक चेंज हो जाती है ना, तो वो थोड़ा बहुत चेंज कर देती है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे वैल्यू कौन सी कंसिडर करेंगे, कन्वीनियंट इसे रहेंगी, अच्छी वैल्यू कहाँ से मिलेगी। देखिए 1.6 इज नियर और क्लोज टू 1.5 रादर देन 1.0, सो वी विल टेक दिस टू बी x0, ये वैल्यू है ना, हम इसे x0 बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी में जो होगी, आपको कौन कौन सी कंसिडर करनी होगी आपको, तो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली एंट्रीज जो है, ये बाद में ये, और बाद में ये, ठीक है, और ये, यू नीड टू कंसिडर दिस मेनी एंट्रीज, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ऐसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करूँगा, x0 is equal to 1.5, x equal to 1.6, and h is given by 1.5 minus 1.0. What is the formula for x, by the way? x1 minus x0. x2 minus x1, x2 is 2 point, x1 minus x0, or 2.5 minus 2.0, that is your h
Difference between any two consecutive argument is 0.5. Now mu is given by x minus x0 upon h. So what is x in our case? 1.6. Now x0 is 1.5 and h is 0.5. So by simplifying this, what is the answer? Answer 0.2. 0.1 by 0.5, that is 0.2. So your h is equal to 0. Mu is equal to 0.2. So by Newton's forward interpolation formula, Fx is given by y0 plus mu into delta y0. Mute yourself. Mu into mu minus 1 by 2 factorial delta square y0 this is delta cube y0 and so on. So let's plug in all this value. So now y0 is, we say this to be y0, 0.14032. 0.14032. Then what is mu? Mu is 0.2. So 0.2 minus, sorry, I have forgotten. 0.2, yeah, yes, this is the term. 0.2 in delta y0. What is delta y0? Now let me see from the table. This is y0. This is delta y0. 0.02768. 0.2 into 0.02786. Mu into delta y 0. Okay. Okay, then what is the next? Here 0.2768. Then plus mu into mu minus 1, that is 0.2. 0.2 minus 1 by 2 delta square y0. So what is delta square y0? This is delta y0 minus 0.00021. Okay, so mute yourself, please. આટલો જ થાય આ તો કોનો આટલો દીધો તેવું કરતા ને વખત છે ઉતાલા હોય પણ Mute yourself. Who is this?
Okay, so then plus again 0.2 minus 0.2 minus 1, 0.2 minus 2 by 3 factorial, that is 6, and the next value is 0.0003. Okay, so now simplify this, you will get answer, approximate answer is 0.14588714. Okay, so approximately ये टेबल में हमें वैल्यू देखिए, पॉइंट के बाद में 5 डिजिट दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद में देखिए 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 1 है वो 5 से कम है, सो आई शुड राइट इन दिस 14587 राउंड ऑफ, ठीक है। तो एफ ऑफ 1.6 मुझे कितना मिल रहा है, 14587, ठीक है। मैं एक अब दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही x0 लेके चले, ये आप x0 लेके भी कर सकते हैं, ये से x0 बोलेंगे तो ये आपका y0 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए y0 कन्वीनियंट यही रहेगा, ये यहाँ ये एंट्रीज नाउ दिस विल गिव्स यू बेटर अप्रोक्सीमेशन। आंसर तो उसमें भी मिलेगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल, बाद वाला हम देखते हैं एग्जाम्पल। आप ऐसे कर सकेंगे तो मैं होमवर्क में रखता हूं, ठीक है। मेथड समझ में आ गई? ये देखिए, फाइंड f of 1.02 having given, ये मुझे दिया हुआ है x एंड fx, देखिए x और fx कैसे दिए हुए हैं, 1.00, दिस इज 1.10 and 1.20, 1.30. now what is value at 1.08415, 8415, यहाँ पे कितनी है 8912, value is given 9320 and value is given 0.9636. okay, so from this we have to find 1.02, so 1.02 is between x0 and x1, so it's somewhere here. तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x0 आपका क्या लेंगे 1.00, x आप कौन सी वैल्यू को x बोलेंगे, दिस इज h कितना है 1.00, 1.10 minus 1.00, this distance is 0.10 or 0.1 simply. So this is your h,
Okay, this is your x0, and what is, how can you find out mu? Mu is nothing but x minus x0 upon h. So what is x? 1.02 minus x0 is 1.00 upon h is 0.1. So on simplifying, you will get mu equal to 0.2. Clear? So now put all this value and prepare a difference table. So the answer is, ये आपको सॉल्व करना है. आंसर आएगा आपका f1.02 is equal to 0.852137.6. अप्रोक्सीमेट आंसर आपका कितना होगा? 0.8521. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल आपको होमवर्क में मैं दूसरा वाला देता हूं. कंप्यूट f0.5, f2.8 from the following table. So table is given to us. This is x, this is fx, 0, 1, 2 and 3. 1 to 11 34, 1 to 11 34. So these are the values which have given. तो देखिए, पहले तो आपको डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करना होगा. ठीक है, यहाँ पे x0 for finding f1 value of function at 0.5. So this is x, so x is 0.5. So 0.5 is near to 0. So we take x0 equal to 0. Okay, what is h? x1 minus x0, that is 1 minus 0, that is 1. What is mu? X minus x0 by h. So x is 0.5. What is x0? Is 0, and then h is 1. So 0.5. Okay, so your mu is 0.5. Okay, now put values in the Newton's forward interpolation formula. Answer for f 0.5 is 0.875. So simply you can write 0.88. So this is the answer. बाद में देखिए 2.8 is between 2 and 3. Okay, so 2.8 के आगे हमें वैल्यू निकालनी है. So what should I take? x. Take x is equal to 2.8. xn मुझे क्या लेना चाहिए? जो लास्ट वाली एंट्री है वो कितनी है यहाँ पे? 34. और 34 के आगे कितनी है? 3. h is 0.1, or sorry, simply 1. h is 1. Now we will find out mu for this. What is mu?
x minus xn upon h. So x is 2.8, xn is 3, and h is 1. So minus 0. How much? Let me see. 0.2. Yes, minus 0.2. So we get value of mu equal to minus 0.2. So apply here Newton's forward interpolation formula, here Newton's backward interpolation formula. Okay, the answer is F 2.8. Answer you will get as 34 minus 27.998. 992, that is approximately 28. ओके, सो यहाँ पे 9 है तो राउंड ऑफ कर दीजिए तो 28 हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर. ओके, मेथड समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को? यस सर. ठीक है, तो ये तीसरा प्रैक्टिकल खत्म हो रहा है. दूसरे कुछ एग्जांपल्स में आप करने को बोलूँगा, ठीक है, लेकिन ये मेथड समझ में आ गई होगी आपको. नेक्स्ट टाइम वी विल सी Gauss forward and Gauss backward interpolation formula. Okay, so we stop our discussion here.